says, Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which war against your soul, against the soul. हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। Many times when we become believers, कई बार जब हम लोग विश्वासी बन जाते हैं, then we are instructed to give up this, give up that, give up so many other things. तो फिर ऐसा होता है, ये अपेक्षा आती है हमारे ऊपर कि मुझे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी है। Stop seeing movies, don't go for the circuses, don't see the TV, don't go this book, no to a lot of things. बहुत सारे चीज़ों के खिलाफ हमें या विरुद्ध हमें जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें ना बोलना पड़ता है, भले वो पिक्चर देखना हो या कुछ तरीके के पुस्तक देखने हो, ऐसे अलग अलग चीज़ें। And that's why many people get put off by that. Why such a lot of no's in my life, and what will I do in my life? फिर ये सब सुन के काफ़ी जो लोग हैं उन निराश हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं मसीह बनूंगा और इतने सारे चीज़ों को मुझे ना करना है तो मैं फिर करूँ क्या मेरे जीवन में। But before we say no, there is always a good yes. लेकिन ये सारी चीज़ों को ना बोलने के पहले एक बहुत ही अच्छा हाँ है जो हमें बोलना है। Why does the word of God tell us not to abstain from all these evil things? तो परमेश्वर की जो वचन है वो क्यों हमें बोलता है कि ये सारे दुष्ट चीज़ों को हमें ना बोलना है या उससे दूर रहना है? Because we belong to a God who is the mighty and powerful. क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर के हैं जो बहुत ही सर्वशक्तिशाली है और सामर्थी है। We used to sing that God is great and mighty, and He is ruler of heaven and earth. हम लोग कई बार एक गीत गाते हैं कि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिशाली है, रूलर ऑफ ऑल द अर्थ। Yeah. और वो पूरे पृथ्वी के ऊपर राज करने वाला है। And we belong to Him. और हम उसके हैं। And because that is a privilege to belong to Him. और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उसके हैं। And because of that, we have to walk worthy of what He has called us. और इसीलिए फिर हमें जो बुलावा उसने हमारे जीवन के ऊपर रखा है उसके योग्य चलना है। We see in the earlier verses. इसके पहले के वचन में हम लोग देखते हैं, पहला पत्रस चैप्टर 2 verse 9, वाक्य 9, it says, "You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light." वाक्य 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। When we become a Christian, we become a chosen race. जब भी हम लोग एक ईसाई बनते हैं तो हम लोग एक चुने हुए वंश के भागीदारी बन जाते हैं। God has chosen a particular race. परमेश्वर ने एक वंश को चुना है। You know what is a race? क्या तुम जानते हो वंश मतलब क्या होता है? Anybody describe any race? An example of any race? क्या कोई वंश का हम लोग यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं? Huh? This is a complicated sort of word. Just Caucasoid. Any other simpler word? Huh? Ethnicity also a very complicated word. Just a simple word. Yeah, a race means. So we have an Indian race, or we say an Aryan race. What is Aryan? You know, Aryans are the people who are tall and fair and handsome who came from north and came to India. So they mixed up with the people of India who are basically Dravidians, who are dark and short, and we are a bit of a mixed culture. Aryans are in the north, Dravidians are in the south. तो वंश को उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, जैसे भारत देश के जो लोग हैं वो एक वंश के हैं, या तो आर्यन करके जो लोग थे जो यूरोप देश में से आए थे वो लोग एक वंश थे, वो लोग भारत देश में आए और भारत देश में जो शुरुआत में जो लोग थे उनका नाम वो द्रविडियन वंश के थे, तो वो लोग आपस में घुल मिल गए और हम लोग आज उनके संतान हैं। This is also, as Ashwin said, is a Caucasian. The Aryans are known as Caucasian, but we will say it's Aryan. तो हम लोग इसको कॉकेशियन वंश करके भी जानते हैं। Then the other race is known as the Chinese race, the Mongoloid race, the Chinese and all those people who look like Chinese type. या तो मंगोलॉइड वंश के भी लोग जाने जाते हैं, जो चीन जापान के जो लोग हैं वो वंश में आते हैं। Then we have the African type of race. फिर अफ्रीका का वंश भी होता है। And then we have the Red Indians type of race. फिर रेड इंडियन का भी वंश होता है। There are different types of races. तो ऐसे अलग अलग वंश हैं। But
You know, some races think that they are very superior. लेकिन कुछ ऐसे वंश है जो सोचते हैं कि उनका वंश दूसरे वंश से ज्यादा बेहतर है या ऊंचा है। The Hitler thought he was Aryan race, he wanted to destroy all the other races. जैसे हिटलर जो था वो सोचता था कि आर्यन वंश सबसे ऊंचा वंश है और बाकी सारे वंशों का उसको नाश करना था, ऐसा उसने सोचा था। And they take great pride in the fact that they belong to that race. और कई बार वो लोग बहुत ही घमंड लेते हैं, गर्व लेते हैं कि वो लोग एक वंश के हिस्सा हैं। We can be proud that we belong to the race that belongs to Jesus Christ. तो हम लोग भी ये गर्व रख सकते हैं कि हम लोग उस वंश के हिस्सा हैं जो प्रभु यीशु से आया है। And God has called us. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है। And God has given us a special title, a chosen race. और परमेश्वर ने हमें एक खास नाम दिया है, स्थान दिया है और एक चुने हुए वंश का हिस्सा किया है। We have a set of belonging. तो हम लोग इसलिए एक परमेश्वर की और परमेश्वर के हैं। Whenever we go to a certain place and we see a born again Christian, there is a bonding between them. इसलिए अगर हम लोग कोई भी नए जगह पे जाते हैं और वहाँ पर कोई नए जन्मी ईसाई को पाते हैं तो तुरंत एक रिश्ता हम लोग महसूस करते हैं। Whatever the language, whatever the economic status. भले वो व्यक्ति का भाषा को जो भी हो या संसार में उसका स्थान जो भी हो। Why? Because we have been brought by the precious blood of Jesus Christ. क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति और मैं हम दोनों परमेश्वर या प्रभु यीशु के कीमती लहू से खरीदे गए थे। We become blood related. इसलिए हम लोग खून के रिश्तेदार बन जाते हैं। So all born again believers are blood related, belong to a particular race. इसलिए सारे नए जन्मे विश्वासी जो है वो लोग खून के रिश्तेदार हैं और वो लोग परमेश्वर के वंश का एक हिस्सा हैं। Then it says we have a royal priesthood. और यहाँ पे आगे लिखा है कि हम लोग राजधारी याजकों का समाज के हिस्सा है। We are royal. हम लोग राजधारी हैं। And we are priests. और उसके ऊपर हम लोग याजक भी हैं। We are royal because we get the royal blood of Jesus Christ. हम लोग राजधारी इसलिए हैं क्योंकि प्रभु यीशु का जो राजधारी लहू था वो हमारे अंदर है। God calls us kings. और परमेश्वर इसलिए हमें राजा बुलाता है। Jesus is the King of Kings. प्रभु यीशु राजाओं के राजा हैं। And he was a priest. और वो याजक भी थे। What does the priest do? और याजक क्या करता है? Huh? Sacrifices of what? So what can we do as priests? तो याजक जो होता है वो बलिदान देता है। तो what? हमें क्या करना है याजक होने के नाते? किस चीज का बलिदान देना है? Sacrifice of praise. स्तुति का बलिदान देना है। And prayer. और प्रार्थना का बलिदान देना है। Jesus prays for us. Jesus praises the Heavenly Father. Praises, okay. प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। So we have got a glorious opportunities to come in the presence of God and praise God and intercede for one another. और इसलिए बहुत ही अद्भुत मौका हमें मिला है ताकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। A royal priesthood. एक राजधारी याजकों का समाज। A holy nation. एक पवित्र देश। What is the meaning of a nation? तो देश का मतलब क्या होता है? We know we have an Indian nation. हम लोग जानते हैं जैसे हमारा भारतीय देश है। We are a new nation. तो हम लोग एक नए देश हैं। We are citizens of India. हम लोग भारत देश के नागरिक हैं। And we are citizens of heaven. और हम लोग साथ ही साथ स्वर्ग के भी नागरिक हैं। We are the dual citizenship. तो हम लोग के पास दो जगहों की नागरिकता है। First, we are citizens of heaven. सबसे पहले हम लोग स्वर्ग के नागरिक हैं। We are citizens of this earth because we are in India. और हम लोग क्योंकि इस देश में रहते हैं इसलिए हम लोग इस दुनिया के भी नागरिक हैं। And this type of nation is not an ordinary nation. और ये जो देश है ये कोई साधारण सा देश नहीं है। We are only holy people come in there. ये जो देश है परमेश्वर का उसमें सिर्फ पवित्र लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। What does mean of holy? और पवित्र का मतलब क्या होता है? People who are set apart for God. ऐसे लोग जो परमेश्वर के लिए अलग रखे गए हैं। We are holy people. तो हम लोग एक पवित्र लोग हैं। Holy nation. और एक पवित्र देश है। And it says a people for God's own possession. एक ऐसे लोग जो परमेश्वर के हैं। For God says these people are mine. तो परमेश्वर कहता है कि ये जो लोग हैं ये मेरे हैं। Sometimes when a mother and parents look at their children, they say, "These children are mine." कई बार जब एक माता पिता अपने बच्चों की ओर देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं। When God looks at us, they say, "These children are mine." उसी तरीके से जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है वो बोलता है कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे हैं। I'm going to live for them. और I'm going to live for them. Yeah. तो मैं उनके लिए जीऊंगा। I've died for them. मैं उनके लिए मरा हूँ। I will look after them. मैं इसलिए उनका ख्याल रखूंगा। I will never leave them or forsake them. मैं कभी भी उनको छोड़ूंगा नहीं, दुत्कारूंगा नहीं। See, God has given us such a wonderful title and wonderful desire in His own life towards us. और परमेश्वर ने हमें कितना अच्छा नाम या स्थान दिया है और कितनी अच्छी इच्छा दी है हमारे जीवन में उसके लिए। And why has God done this? और परमेश्वर ने ये सारी चीजें क्यों की हैं? It says that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो।
that I may proclaim the excellency of Jesus Christ. ताकि प्रभु यीशु के जो गुण हैं उसको मैं प्रकट कर सकूं। What is the meaning of excellencies of Jesus तो Christ? प्रभु यीशु के गुणों का मतलब क्या है? Anybody? कोई बोल सकता है? Yes. चरित्र। Correct. Your nature should be excellent. इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्वभाव है वो प्रभु यीशु के जैसे होना Your चाहिए। behavior should be like Jesus Christ. मेरा जो बर्ताव है वो प्रभु यीशु के जैसे होना चाहिए। So when we belong to a particular place, we say, particular nation, we have to behave like that. तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक देश का हूँ तो उस देश के लोगों के हिसाब से ही मुझे बर्ताव करना है। When a person from a great country like America, कोई व्यक्ति अगर कोई महान देश से आता है जैसे अमेरिका से, he behaves with certain dignity. तो वो एक तरीके से बर्ताव करता है जो वो देश का इज्जत के हिसाब से बर्ताव He करता है। doesn't behave like a person from the African country. वो एक अफ्रीकी देश से आए हुए व्यक्ति के जैसे बर्ताव नहीं करता। We belong to Jesus Christ and belong to a holy nation. तो हम लोग भी प्रभु यीशु के हैं और एक पवित्र देश के हैं। That we proclaim the excellencies of Him. तो इसलिए हमें प्रभु यीशु के गुणों को प्रकट करना है। That is why God has called us all these names. और इसलिए प्रभु यीशु ने हमें ये अलग-अलग नामों से He बुलाया has है। called us from darkness into His marvelous light. हमें उसने अंधकार में से उसकी अद्भुत ज्योति में वो बुलाया है। Marvelous light means I'm always living in the presence of God. अद्भुत ज्योति का मतलब मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जीता We should हूँ। always live in the presence of God. हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है। Earlier we were not living in the presence of God. पहले हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जीते थे, We are living in darkness and sin. अंधकार और पाप में जीते थे। And then we were displaying the nature of our own father, that is the devil. और इसकी वजह से हम लोग हमारे जो पूर्व जो पिता थे शैतान, उसके गुणों को हम लोग प्रकट करते We थे। are lusting, fighting, doing all the wrong things. हम लोग अभिलाषाएं में पढ़ते थे, झगड़ा करते थे और झगड़ों में पढ़ते थे। That's why it says verse 11, beloved. और इसलिए वाक्य 11 में वो लिखता है, हे प्रियो। God always calls us beloved. परमेश्वर हमेशा हमें प्रियो करके बुलाता है। You are my beloved children. वो बोलता है कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। We may not feel that we are beloved, हमें ऐसा लगे नहीं कभी-कभी कि हम लोग परमेश्वर but के God प्रिय हैं, always calls you beloved. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमेशा तुम्हें प्रिय बुलाता है। How much in spite of all your sin and your weakness, God says, this is my beloved son. भले तुम्हारे जीवन में कितनी भी निर्बलता हो, कितनी भी कमियां हो, पाप हो, फिर भी परमेश्वर तुम उसका प्रिय बच्चा बुलाता I know है। you have got a long way to go. वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी बहुत ही और लंबा सफर तय करना I know है। you got a lot of bad thoughts in your mind. मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कई सारे गलत सोच विचार हैं। I've sent you the Holy Spirit to change you. इसलिए मैंने मेरी पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि I know वो a lot तुम्हें बदले। lot of behavior is not good, मैं जानता हूँ कि कई सारे तुम्हारे बर्ताव सही नहीं है, but I'm going to change you. लेकिन मैं तुम्हें बदलूंगा। I'm going to help you that you can reflect the wonderful nature of Jesus Christ. मैं मदद करूंगा ताकि तुम प्रभु यीशु का जो बहुत ही अद्भुत चरित्र है वो तुम अपने जीवन में प्रकट कर सको। That you can, I can always say, God can say, this person has behaved excellent. ताकि परमेश्वर फिर हमेशा कह सके कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव करता है। The best remark you can get for your own, any paper or anything that you write, excellent. कोई भी पेपर या परीक्षा हम लोग लिखते हैं उसमें सबसे अच्छा अंक यही होता है कि सामने वाले व्यक्ति लिखे इसने बहुत ही अच्छा किया है, अद्भुत किया है। Not good, fair, very good, but excellent. सिर्फ अच्छा या बेहतर नहीं लेकिन अद्भुत। Jesus, the nature of Jesus is always excellent. तो प्रभु यीशु का जो चरित्र है वो भी अद्भुत है। So God only wants my excellent behavior. तो इसलिए परमेश्वर भी मुझसे वही अपेक्षा रखता है कि मेरा बर्ताव भी अद्भुत हो। My behavior is excellent, my service also will be excellent. तो अगर मेरा बर्ताव अद्भुत रहेगा तो मेरी सेवकाई भी अद्भुत रहेगी। Then he says, because of this wonderful calling that you're going to be excellent behavior, I urge you as aliens and strangers. और verse 11 Yeah, verse 11. और इस यहाँ पे वो लिखता है कि मैं विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जिससे आत्मा युद्ध करती है बचे रहो। We have to consider ourselves as foreigners and strangers in this world we are living. तो इस दुनिया में हमें खुद को परदेशी और यात्री समझ के जीना है। Why have we to consider ourselves as foreigners and strangers? क्यों हमें खुद को एक यात्री या परदेशी समझ के जीना है इस दुनिया में? Because we have got fleshly lusts. क्योंकि हमारे पास शारीरिक अभिलाषाएं हैं। We have filled with the Holy Spirit, हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, but we have got fleshly desires. लेकिन उसके बावजूद हमारे पास शारीरिक अभिलाषाएं भी हैं। Desires that pull us away from God. ऐसी इच्छाएं जो हमें परमेश्वर से दूर खींचती हैं। When, till what time will we have the fleshly desires? और ये सारी अभिलाषाएं कब तक रहेंगी हमारे पास? Till when? कब तक? Till the day we die. जब तक हम लोग मरे नहीं तब तक। Till the day we die, the flesh will always be with us. जब तक हम लोग मरेंगे नहीं तभी तक ये जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं हमारे साथ रहेंगी। Somebody said a person can be safely said that he will surely go to heaven is only when after he dies. किसी व्यक्ति ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसने उद्धार पाया है तो हम लोग तभी निश्चित रह सकते हैं कि उसने उद्धार पाया है कि जब तक वो मरेगा और फिर स्वर्ग में जाएगा।
You can backslide on the last day of your life also. क्योंकि एक व्यक्ति उसके जीवन के अंत के दिन में भी अपने मसीह जीवन से पीछे हट सकता है। How can you backslide? कैसे तुम पीछे हट सकते हो? You can think yourself as so great and so proud. तुम सोच सकते हो कि तुम बहुत ही महान हो और घमंड में पड़ सकते हो। And proud people never enter the kingdom of God. और घमंडी लोग कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। They go to the devil. वो लोग सीधा शैतान के पास जाएंगे। So till the last, I have to be very careful in my own life. और इसलिए मेरे जीवन के अंत के दिन तक मुझे बहुत ही सावधान रहना है। Lord, always keep me humble. परमेश्वर तू मुझे हमेशा नम्र रख। Help me not to despise other people. और मदद कर कि मैं कभी भी किसी की ओर नीचे ना देखूं। And the exhortation the apostle Peter himself tells us और ये जो प्रोत्साहन है ये प्रेरित पत्रस ही हमें देता है to abstain from fleshly lusts. कि हमें शरीर की अभिलाषाओं से दूर रहना है। What does it mean to abstain? तो दूर रहने का मतलब क्या है? The word abstain comes from this word. What example can you give? तो हम लोग क्या उदाहरण दे सकते हैं दूर रहना या बचे रहना इसका Abstain उदाहरण? from a bad habit, for example. तो सोचो एक गलत आदत से तुम्हें बचे रहना है या दूर रहना है। Smoking, drinking, alcohol. We have to abstain from that. सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सारी आदतों से हमें दूर रहना है। He said, we have, as we abstain from alcohol and smoking and eating all the other bad drugs, we have to stay away from those things. तो यहाँ पे पतरस कहता है कि जैसे हम लोग धूम्रपान या शराब से दूर रहते हैं उसी तरीके से हमें हमारे शारीरिक अभिलाषाओं से भी दूर रहना है। And what are these fleshly desires? और ये शारीरिक अभिलाषाएं क्या हैं? What are the flesh? We know they are the lusts of our flesh. और ये है हमारा शरीर का हवस या अभिलाषाएं। 1 John chapter says the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. पहला यूहन्ना कहता है कि शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड They are always there with us, ये हमेशा हमारे साथ होती हैं। and they want to draw us towards the world. और वो चाहते हैं कि हम लोग संसार की ओर और खींचते जाएं। The lust of the flesh are what? शरीर की अभिलाषाएं क्या हैं? Sexual desires, काम वासना की बातें which are wrong. जो गलत हैं। Then what else? और क्या? Desire to eat lot of food and have a glutton. इच्छा है ना कि हमेशा और खाना खाना या एकदम खाने के पीछे पागल होना। What else? और क्या? Desire to talk a lot. आदत ये इच्छा बहुत ज्यादा बोलने के लिए And desire to sleep. और इच्छा बहुत ज्यादा सोने के लिए। See, if you desire to sleep and like to talk a lot and then like to eat a lot and then like to have abnormal sexual desires, then we go away from God. We sin. अगर हम लोग हमारे अंदर इच्छा रखेंगे कि मैं बहुत जरूरत से ज्यादा सोऊं, जरूरत से ज्यादा खाऊं, जरूरत से ज्यादा बोलूं या व्यभिचार की चीजों में पढ़ूं, तो मैं परमेश्वर से दूर हट जाऊंगा। That's how we used to live. इसलिए हम लोग अपने पिछले दिनों में ऐसे ही तो हम लोग जीते थे। We used to live in darkness. हम लोग अंधकार में जीते थे। That's why we used to sin. और इसलिए हम लोग पाप करते थे। The Lord says, see, now you're capable of sinning. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि देखो तुम भी पाप में पड़ सकते हो। They all legitimate desires, but over a period of time, if it cross the limit, it will go to sin. ये जो सारी जो इच्छाएं हैं ये सही इच्छाएं हैं, लेकिन अगर ये एक सीमा के आगे चली जाए तो वो तुम पाप में पड़ जाओगे। The Holy Spirit will whisper to you, now stop it. Now this is stop now. Stop eating this much. और पवित्र आत्मा तुमसे बातें करेगा, बोलेगा अब तुम बहुत खा चुके हो, अब खाना बंद करो। Now stop. Now get up from your bed. और वो बोलेगा अभी तुम बहुत सो चुके हो, अभी तुम अपने बिस्तर से उठ जाओ। Don't laze around. अभी उधर ही आलसी के जैसे घूम पड़ो मत बेड पे। Now keep a control over your tongue. और अभी अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण लाओ। You have talked enough. बहुत ज्यादा बोल दिया है तुमने। Some people have no control over their tongue. कई बार लोगों के पास नियंत्रण नहीं होता उनकी जीभ के ऊपर। When we have no control of these things, we go into sin. अगर हमारे पास नियंत्रण नहीं होता ये सारी चीजों के ऊपर तो हम लोग पाप में पड़ते हैं। All these things are normal for human beings. ये सारी जो चीजें हैं ये सारे मनुष्यों के लिए सामान्य है। But then when we cross the limit, we sin. लेकिन अगर हम लोग एक सीमा के आगे चले जाते हैं तो हम लोग पाप में पड़ जाते हैं। And when we sin, we manifest the deeds of darkness. और जब हम लोग पाप में पड़ते हैं तो फिर अंधकार के कार्यों को हम लोग प्रकट करते हैं। They result in all fighting, quarreling, bad nature. और फिर ये सारी चीजों का परिणाम ये होता है कि हम लोग झगड़े में पड़ते हैं और स्वभाव खराब हो जाता है। The lust of flesh, then the lust of the eyes. शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं। Wanting to desire all things that are, we want lot of things for ourselves. हमेशा इच्छा रखना कि मैं और चीजें प्राप्त करूं मेरे खुद के लिए। Other people have got this, even I want it. दूसरों के पास है तो मुझे भी चाहिए। The spirit of covetousness. तो इसको हवस की आत्मा बोलते हैं। I want so many type of clothes, I want this, I want that. So many other new things that are there in this world. मुझे इतने सब अलग अलग तरीकों के कपड़े चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जो सारी चीजें संसार में है मुझे चाहिए। This is also a fleshly desire. ये भी एक शारीरिक इच्छा है। What shall we do? Say, Lord, you give me everything. Lord, I want to be content with what I have. तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर तूने मुझे बहुत कुछ पहले से ही दिया है, मुझे उसी में तृप्त रहना है।
Lord, if you want me to get it, I'll get it. I don't want. If you don't want me to get it, I don't want it. अगर तू चाहता है कि मैं उस चीज़ को पाऊँ तो मैं तैयार हूँ उसको पाने के लिए, लेकिन अगर तू चाहता है मैं उसे नहीं पाऊँ तो चलेगा मुझे. The more we desire money and the desire for money goes, then what happens? If it is abnormal, we find that something, we cool down in our fellowship with God. अगर हम लोग पैसों के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमारी जो संगति है परमेश्वर के साथ वो ठंडी पड़ जाती है. And third is the pride of life. और तीसरी है चीज़ जीविका का घमंड. What is being a pride of life? जीविका का घमंड का मतलब क्या है? That they think I am a very important person. इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ. I am such an important person. मैं बहुत ही जरूरी या महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ. I despise other people. इसलिए मैं दूसरों की ओर नीचे देखता हूँ. They are because I'm more highly educated. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ. And many things we can think ourselves very highly. और बहुत सारे से अलग-अलग चीज़ों हैं जिनमें हम लोग सोचते हैं कि हम लोग दूसरों से ऊपर हैं. But we have to think that God has given us all these things. लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने ही हमें दी है. That's why we have to have a humble heart. इसलिए हमें हमारे पास एक नम्र मन होना चाहिए. Pride can take us down very soon. घमंड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही जल्दी हमें नीचे लेकर जा सकती And है. because of that, the grace of God departs from our own और life. घमंड की वजह से फिर परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन से उठ जाती है. And these are the fleshly desires. और ये सारी है शारीरिक अभिलाषाएं. We like to think very good things about ourselves. हम लोग खुद के बारे में बहुत ही ऊंची चीजें सोचते हैं. हमें अच्छा लगता है सोचना. I was thinking we try to excuse all our weaknesses very quickly. और सारे जो हमारे अंदर निर्बलताएं हैं, कमियां हैं, उसके लिए हम लोग बहाने बहुत ही जल्दी बना देते We हैं. find fault with other people. लेकिन दूसरों में कमियां बहुत ही जल्दी निकालते हैं. All people who criticize and find fault and judge other people are very proud. जितने भी लोग हैं जो दूसरों में कमियां निकालते हैं और दूसरों को नीचे डालते हैं, वो लोग घमंडी लोग हैं. That's why we have to search our hearts. Lord, I don't want to criticize and judge other people. इसलिए मुझे हमेशा मेरी मन में खोज करनी है, बोलने की परमेश्वर मैं दूसरों में कमियां नहीं निकालना चाहता, दूसरों के ऊपर न्याय या राय नहीं बनाना चाहता. When we yield ourselves to these fleshly desires, जब भी हम लोग खुद को ये शारीरिक अभिलाषाओं की ओर त्याग देते हैं, then we find that my fellowship with God goes away. तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो संगति है परमेश्वर के साथ वो चली जाती है. We see in that verse 1 John chapter 2. पहले यूहन्ना में जाएंगे. पहला यूहन्ना चैप्टर 2 verse 15. वाक्य 15. Do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है. God says, if you love the world, the love of the Father goes away from your life. बाइबल कहता है कि अगर तुम संसार से प्रेम करते हो तो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे जीवन से चला जाता है. I've seen that in my own life. We've all seen that. ये चीजें मैंने अपने जीवन में भी देखा है, तुमने भी देखा होगा. Spend more and more time in worldly pursuits and doing the world fleshly desires. You suddenly find yourself become very dry. और समय बिताओ दुनिया की चीजों में, शारीरिक चीजों में, तो फिर तुम देखोगे कि परमेश्वर के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है या संगति है वो सूखा पड़ जाता है. You don't feel like praising God. फिर मन नहीं करता कि परमेश्वर की हम स्तुति करें. There's condemnation in our own life. क्योंकि मन में हम लोग हमेशा तुच्छ महसूस करते रहते हैं. Fellowship with God gets broken. और परमेश्वर के साथ संगति जो है वो टूट जाती है. Because when we yield ourselves to the fleshly desires, then we begin to sin. क्योंकि जब भी हम लोग शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं तब हम लोग फिर पाप में गिर जाते हैं. But the Lord wants to have always fellowship with Him. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमेशा उसके साथ संगति में That we जिएं, proclaim the excellencies of Him. ताकि हम लोग प्रभु यीशु के गुणों को प्रकट कर सकें. Why do we behave so badly? क्यों हम लोग कितने बार इतने गलत तरीके से बर्ताव करते Because we हैं? yield ourselves to our own desires. क्योंकि हम लोग खुद के इच्छाओं के अनुसार जीते हैं. James says, what is the cause of all the fighting and quarreling among you? प्रेरित याकूब कहता है कि ये सारे तुम्हारे बीच जो झगड़े चल रहे हैं उसका कारण क्या है, जड़ क्या है? James chapter 4 याकूब में जाएंगे. याकूब चैप्टर 4 verse 1. याकूब चैप्टर 4 वाक्य 1. What is the source of quarrels and conflicts among you? Is it not the source your pleasures that wage war in your members? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? You lust and do not have, so you commit murder. तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो. Now whom is God, the apostle James speaking to?
तो यहाँ पे प्रेरित याकूब किन लोगों की और बात बोल रहा है He ये is सारी speaking to चीजें? unbelievers, क्या वो अविश्वासियों की ये सारी चीजें is बोल speaking रहा to है? believers. नहीं, वो विश्वासियों को ये सारी चीजें बोल रहा है। saying you are envious and you cannot obtain, so you fight and quarrel. तो यहाँ पे लिखा है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो। All quarreling and fighting belongs because you are leading yourselves to the world and flesh. सारे जो झगड़े शुरू होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि तुम अपने शरीर की ओर झुक रहे हो। We want to please ourselves. हमें खुद को खुश करना है। And that is the reason for all the problem in our own life. और वही कारण है सारी समस्याओं की हमारे जीवन में। And that's why the Lord tells us you abstain from it. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उन चीजों से बचे रहो। All young people, it says the Bible says, flee from youthful lust. सारे युवकों की ओर बाइबल कहता है कि तुम्हें युवकों की अभिलाषाओं से दूर भागना है। Don't go to places where you're going to get tempted. ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ पे तुम लुभाए जाओगे। Don't go with the wrong company of friends, गलत संगति मत रखो। wrong company of relatives. गलत रिश्तेदारों की संगति मत रखो। There was a young brother in our church, हमारे कलेशा में एक युवक भाई था। and then one Sunday he wanted to go. I think all his relatives were going for a party. तो and picnic. एक रविवार के दिन उसके सारे रिश्तेदार एक पिकनिक पे जा रहे थे, तो उसको भी जाना था। And then he said, I want to go. तो उसने बोला कि मैं भी जाऊंगा। And he was a new believer. वो एक नया विश्वासी था। But after that he came back. फिर वो पिकनिक से वापस आया। He said, oh, please don't never go with all these people on Sundays. फिर उसने बोला वापस आने के बाद कि मैं वापस रविवार को कभी भी इन लोगों के साथ जाऊंगा नहीं। Because what happened in the parties? क्योंकि क्या होता है ये सारे जश्नों में All dirty jokes was cracked. सारे खराब या गंदे मजाक उड़ाए जाते हैं। Drinking, smoking. पीना और सिगरेट पीना, दारू पीना। Everybody becomes free in the flesh. सब लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं में एकदम पड़ जाते हैं। People enjoy. और लोग एकदम आनंद उठाने के ऊपर उनका फोकस रहता है। Everybody says, come to Goa, let us enjoy. सब लोग बोलते रहते हैं कि चलो गोवा चलो वहाँ पे मजे करेंगे। What are they going to enjoy? क्या मजे करोगे? Drinking, शराब पीना, dancing, नाचना, immorality. व्यभिचार में पड़ना, अश्लीलता में पड़ना। That is why people run to Goa. इसलिए ये सारी चीजों के लिए लोग गोवा में भागते हैं। And as believers, say, please don't go to such places. इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना है। You will enjoy it, but the says the wages of sin is death. तुम वहाँ पे भले आनंद उठाओगे, लेकिन बाइबल कहता है कि पाप का जो पगार है वो मृत्यु है। We all know we have spent enough time living like that in our life. हम सभी लोग ये बात से वाकिफ है कि हम सभी ने इन चीजों में बहुत ज्यादा समय पहले से ही बिता दिया है। Already so many years have been wasted. पहले से कितने सारे हमारे जीवन के सालों को हमने इसी में व्यर्थ किया है। The Lord says, now you flee from youthful lusts and follow those who follow the Lord wholeheartedly. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम युवक के दिनों के अभिलाषाओं से दूर भागो और उन लोगों का पीछा करो जो परमेश्वर के पीछे हैं। Keep company with the excellent people of this world. एकदम जो अद्भुत लोग हैं इस दुनिया में उनके संगति में जियो। Keep people who are pursuing after excellencies. जो लोग अद्भुतता के खोज में हैं उनकी संगति में रहो। Then you will be encouraged. तभी तुम भी प्रोत्साहन पाओगे। Then it says a man is known by the company he keeps. बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति जाना जाता है उसके संगति के अनुसार। If you keep the company of Jesus, you will become like Jesus. अगर तुम प्रभु यीशु की संगति में जियोगे तो फिर तुम प्रभु यीशु के जैसे बनोगे। If you keep the company of the Lord's people, you will become like them. Lord's Lord's तो people. अगर तुम परमेश्वर के लोगों की संगति में रहोगे तो फिर तुम उनके जैसे बनोगे। Then you will get encouraged. और तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा। Over a period of time, your habits will change. जैसे समय बीतता जाएगा तुम्हारी आदतें भी बदलती जाएंगी। The Lord says, don't keep company with bad people. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि गलत लोगों की संगति में मत जियो। Corinthians says, bad company corrupts good manners. कोरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि गलत संगति तुम्हारे अच्छे बर्ताव को या स्वभाव को खराब करेगी। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Should we not go to work? क्या मैं दफ्तर में नहीं जाऊं? In my workplace, everybody's got bad. क्योंकि मेरे दफ्तर में तो सभी लोग ही खराब है। No, when you work, you have to stay in the workplace. नहीं, जब तुम काम करते हो तो तुम्हें दफ्तर में रहना ही पड़ेगा। But what happens when you have free time? लेकिन तुम तभी क्या करते हो जब तुम्हें खाली समय मिलता है? Then where do you want to go? तभी तुम्हें कहाँ पर जाना है? That is important. वो जरूरी बात है। We have to go to weddings, we have to go to our parties. कई बार हमें जश्नों में, शादियों में जाना पड़ता है। Or don't get involved with them. लेकिन उन लोगों से ज्यादा तुम घुल मिल मत जाओ। I like the earlier weddings that we used to take place. मुझे पुराने दिनों के जो शादियां हैं बहुत ही पसंद थे। Many of I think this Maharashtrian weddings, they're very simple. Just go, wish, and just take ice cream and go. जो महाराष्ट्र जो शादी होते थे वहाँ पे लोग बस जाते थे, उनको विश करते थे, आइसक्रीम खाते थे और निकल जाते थे। Now most of the weddings are all disco and dancing and every evil thing you can see. लेकिन आजकल शादियों में तो डिस्को, नाच गाना और कई सारे दुष्ट चीजें भी देखने मिलती हैं।
And you have to wait for some time, for a long time. और इसकी वजह से तुम्हें कई घंटे उधर शादी में बैठना पड़ता है। The best is always to give the minimum time to them. इसलिए सबसे अच्छा योजना यही होती है कि हम लोग कम से कम समय दें ये सारी चीजों के And the लिए, Lord will help you. और परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। Somebody said, no, it is like we have to deal all with people in this world. जैसे किसने बोला है कि हमें इस दुनिया के लोगों से लोगों के साथ बर्ताव करना पड़ता है, रहना पड़ता We है, have to draw them to the Lord. और हमें उनको परमेश्वर के निकट लाना है। It is almost like a tug of war. तो ये एक खिंचाई के खेल जैसा है। If you can bring them to the Lord, it's good. अगर तुम उनको प्रभु की ओर खींच सकते हो तो ठीक है, But if their pull is very strong, लेकिन अगर उनकी खिंचाई और ताकतवर है what should you do? तो तुम्हें क्या करना है? Leave the rope. वो रस्सी को छोड़ देना है, Let them win. उनको जीतने दो, Let them do what they like. उनको करने दो जो उन्हें करना है। Says, I want to abstain. तुम बोलो कि मुझे इस चीज से दूर रहना है, I can't do that. मैं नहीं कर सकता जो वो कर रहे हैं, And then we will be safe and close to the Lord. और तभी हम लोग परमेश्वर के निकट रहेंगे We और must खुद try भी to, बचे we रहेंगे। must try to draw as many people to the Lord हमें कोशिश करनी है कि हम लोग जितना हो सके उतने लोगों को परमेश्वर की ओर खींचें। in our relationship to all the people that we meet. जितने भी हमारे दोस्त हैं या रिश्ते हैं जिनसे हम लोग मिलते हैं, Some may be interested, some may not be interested. कुछ लोग दिलचस्पी लेंगे ये बातों में, कुछ लोग नहीं लेंगे। And then but the thing is that always our life should be of an excellent nature. लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि हमारी जो जीवन है वो एकदम अद्भुत होनी चाहिए। If our character is getting affected, if my devotion to the Lord is being affected, then just leave it. अगर कोई संगति की वजह से मेरा चरित्र या प्रभु के साथ जो मेरी संगति है उस पर असर पड़ रहा है तो मुझे वो रिश्ते को खत्म करना है। In 1 Peter chapter 2, we turn back. पहले पत्रस चैप्टर 2 में जाएंगे। It's verse 12, keep your behavior excellent among the Gentiles. अविश्वासियों के बीच में अपने बर्ताव को अद्भुत रखो। So in the thing that they slander you as evildoers, they may on account of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Just Verse 12. पहला पत्रस चैप्टर 2 वाक्य 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुरकमी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। When we walk in this world among our relatives and friends, people are going to criticize us. जब भी हम लोग इस दुनिया में चलेंगे हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच तो लोग हमारी कमियां निकालेंगे। They're going to talk wrong things about you. और कई बार तुम्हारे बारे में गलत चीजें भी बोलेंगे, They're going to tell lies about you. तुम्हारे बारे में झूठ भी बोलेंगे। But the Lord said you will always keep an excellent behavior. लेकिन परमेश्वर कहता है इन सभी चीजों के बीच में तुम अपने बर्ताव को एकदम अच्छा और शुद्ध रखो, The one day when Jesus comes, ताकि एक दिन जब भी प्रभु यीशु आए they say this person only did good to me. तो ये जो लोग हैं वो लोग बोलेंगे इस व्यक्ति ने मेरी ओर सिर्फ अच्छा ही किया है। In spite of all the bad they have done, you only should do good to them. भले वो तुम्हारी ओर कितना भी बुरा करे तुम उनकी ओर बस अच्छे ही करते जाओ। All good to your neighbors. तुम्हारे पड़ोसियों को भी अच्छा ही करो। All good to your friends in the office. तुम्हारे दफ्तर में जितने दोस्त हैं उनकी ओर भी अच्छा ही करो। Whether they backbite you. भले वो तुम्हारे पीठ पीछे बातें करें। All good to your boss. तुम्हारे मालिक की ओर भी हमेशा अच्छा ही करो। All good to your relatives. तुम्हारे रिश्तेदारों की ओर भी हमेशा अच्छा ही करो। Because Jesus went about doing good. क्योंकि प्रभु यीशु खुद गए सब जगह पे अच्छा करता है, He was अच्छे करते anointed by the हैं। Holy Spirit and went about doing good. पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो आए फिर वो अच्छा करते गए सब He जगह पर। knew that all the people whom he healed and did all the miracles were not going to follow him. वो जानते थे कि जितने लोगों को उन्होंने चंगाई किया था, कितने लोगों को उसने चमत्कार दिखाया था, उसमें से कई लोग तो उनका पीछा भी नहीं करेंगे। But he said, I'm going to do good. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बोला कि नहीं मैं इनकी ओर अच्छा ही करूंगा, That was his nature. क्योंकि वो उनका स्वभाव था। We got a message on the WhatsApp, I think Brother Thomas had sent. The Mother Teresa says, if other people are bad, do good to them anyway. जैसे ब्रदर थॉमस ने व्हाट्सएप पे एक चित्र डाला था या मैसेज डाला था मदर टेरेसा का, जिसने बोला था कि भले लोग तुम्हारी ओर कुछ भी करें तुम उनकी ओर अच्छा ही करो। Where they curse you, also do good to them. अगर वो तुम्हें श्राप दे फिर भी तुम उनकी ओर अच्छा ही करो। Do good to all men. हर एक व्यक्ति की ओर अच्छा करो। That is a wonderful calling, brothers and sisters. ये बहुत ही बेहतरीन बुलावा है हमारे लिए भाई और बहनों। We are filled with the Holy Spirit and going about doing good. हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और फिर अच्छा करते जाते हैं। Some good encouraging words you can speak. और कोई भी व्यक्ति की ओर अच्छे भले शब्द बोल सकते हैं। People once who only bad doing bad. एक व्यक्ति जो एक समय पे हमेशा सिर्फ गलती करता रहता था, All bad things are all bad words. और बस गलत काम ही करता रहता था, गलत शब्द ही बोलता रहता था। God can change and make us doing good. लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को भी बदल सकता है ताकि वो हमेशा फिर अच्छा ही बोलते रहे, करता रहे। We will live and talk like Jesus. फिर हम लोग जिएंगे और बोलेंगे प्रभु यीशु के जैसे। That is the privilege that God has called us. यही सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और उसकी ओर बुलाया है। This is the greatest thing a human being can come to. ये
सबसे महान चीज है जिसके लिए एक व्यक्ति जी सकता है। And what a wonderful calling it is. और कितना बेहतरीन बुलावा है ये। And that's why we say, I don't want all these worldly things. इसलिए हमें कहना है कि इसलिए मुझे ये सारे संसारी चीज नहीं चाहिए। You can give me the whole world. तुम भले मुझे पूरी दुनिया दे दो, I want to be like Jesus. लेकिन मुझे प्रभु यीशु के जैसे बनना है। I'd rather have Jesus. There's a song than silver and gold. एक गीत है जिसमें ऐसा बोला गया है कि मैं प्रभु यीशु को पाना चाहूंगा इसके बदले कि मैं सोना चांदी पाऊं। Do you want the wealth of Bill Gates? क्या तुम्हें बिल गेट्स का धन चाहिए? All the 10 cars, so many cars, and say, I don't want. I want to be like Jesus. क्या तुम्हें इतनी सारी गाड़ियां चाहिए कि तुम कहोगे कि नहीं मुझे प्रभु यीशु के जैसे बनना I है, have to live only 20-30 years more. क्योंकि मुझे और बस 20-30 साल इस दुनिया में जीना I है want to live for Jesus. और इसलिए इन दिनों में मुझे प्रभु यीशु के लिए जीना है। Every day God has given you to live for Him. हर एक दिन तुम्हें दिया है परमेश्वर ने ताकि तुम उसके लिए जी सको। He will change you, तुम्हें बदलेगा परमेश्वर and He will fill you with the Holy और Spirit, अपने पवित्र आत्मा से तुम्हें भरेगा and you will go on about doing good और फिर तुम सब जगह पे अच्छा ही करते जाओगे and healing all those who are oppressed by the devil. और हर एक व्यक्ति को तुम छुड़ाते जाओगे जो शैतान के बोझ के नीचे दबा है। All the people around us are oppressed by the devil, हमारे इर्द गिर्द कितने सारे लोग हैं जो शैतान से पीड़ित हैं, परेशान हैं, and we can do about doing good. और हम लोग उनकी ओर अच्छा करते जा सकते We हैं। can pray for them, हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते pray हैं, for enemies, अपने दुश्मनों की ओर भी प्रार्थना कर do सकते good हैं to enemies. और अपने दुश्मनों की ओर भी अच्छा कर सकते हैं। This is only the child of God who is anointed by the Holy Spirit can do. ये एक ऐसा काम है जो परमेश्वर का बच्चा ही जो पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है कर सकता है। Thus we can proclaim the excellencies of Him. इसलिए हम लोग फिर प्रभु यीशु के गुणों को प्रकट कर सकते हैं। But I keep on mixing around the things of this world, then I will also start doing bad. लेकिन अगर मैं दुनिया की चीजों के साथ ही घुलता मिलता रहूंगा तो फिर मैं भी गलत ही चीजें करने लगूंगा। Let us have humble heart, brothers and sisters. इसलिए हमारे पास एक नम्र मन हमें रखना है Let us see our wonderful calling. और हमें हमारे बेहतरीन बुलावे की ओर देखना है And let's seek to please the Lord in this one short life that और God has कोशिश given करनी us. है कि हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करें हमारे इस छोटी सी एक जीवन से। Amen. आमीन।